हाँ भाई, क्या हाल है भैया। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आस्क अजी स्वैग, जहाँ पे आप मुझे अपने सवालात भेजते हैं और मैं उनके जवाबात देने की भरपूर कोशिश करता हूँ। आप ये वीडियो मेरे नए चैनल पे देख रहे हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। और आज भी काफ़ी सवालात हैं, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आंसर्स अपने शॉर्ट रखूँ, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि मैं थोड़ा सा आगे पीछे निकल जाता हूँ, इधर उधर निकल जाता हूँ। एंड इफ यू वांट टू सपोर्ट दिस चैनल, यू कैन ऑल्सो सपोर्ट इट ऑन patreon.com/ganjiswag एंड सो दैट वी कैन मेक मोर ऑफ दीज वीडियोज़, ताकि ज़्यादा लोगों के जवाब दे सकें। पहला सवाल है, इसकी हेडिंग है अ नेशनलिस्ट अप्रोच। Hello, sir. First of all, I admire what you're doing for our country, and I hope one day I can contribute for the betterment of Pakistan as well. ये ख्वाहिशात हैं आपकी। I'm living in Europe for the past 11 years with my family. My parents came here because my dad lost his job in 2009 because at his office they found out that he was Ahmadi, and the whole department refused to work with him and threatened to resign if he even thought, even though the boss was very happy with his work. Didn't want to fire him, but he said that it's easier for him to replace one person than 11. My dad finally resigned instead of getting fired. We haven't visited Pakistan since then, and my parents won't let me go because they think it's dangerous. But I miss my country a lot and I want to go back so badly. I left Pakistan, but Pakistan has never ever left me, and I don't think it will ever. Despite the fact that Ahmadis are being prosecuted and killed every second day there. But I believe that running away in a foreign country is not the way to go, as these people will never accept you as one of theirs. I think that we should stay there and make things better so we have our own country to live in. I'm doing masters in graphic designing here and I'll complete it in a year. My parents are political refugees in France, and I have the overseas Pakistani status. I have a Pakistani ID and a Pakistani passport, which is very dear to me. My parents forced me to apply for this country's nationality where we're living, but I absolutely hated it, and I don't want to be a French citizen because people here are a bit racist and they won't ever accept me as one of theirs. Moreover, I'm very proud of my Pakistani passport and I want to keep it. I want to go back there after my studies and do something for the betterment of my country instead of hiding here, living a good life when my fellow countrymen and other Ahmadis are living there. I miss Pakistan a lot. I keep checking ticket prices and stuff like that, just like that. But my parents don't want to let me go. It makes me genuinely very sad. My question is this a good thing to have? Should I change it or change some aspects of it? Thanks a lot in advance for your answer. Keep doing the great work. Thanks again. First of all, I would like to say this to my fellow Pakistanis के अच्छा, बहुत से लोग अक्सर ये कहते हैं कि जी अंग्रेज़ी का तर्जुमा भी कर दिया करें। सो बेसिकली ये साहब हैं, ये 11 साल से फ्रांस में रह रहे हैं, क्योंकि इनके फादर पाकिस्तान में काम करते थे और उनके ऑफिस वालों को पता चला कि वो अहमदी हैं और उनके कॉलीग्स ने उनके साथ काम करने से इनकार कर दिया। बॉस को उनका काम पसंद था, बॉस रखना चाहते थे, लेकिन फिर बॉस ने बोला कि यार 11 को निकालने से बेहतर है बंदा एक को निकाल दे। तो उनके फादर ने खुद ही रिज़ाइन करके पॉलिटिकल रिफ्यूजी का स्टेटस लेके अब वो फ्रांस में रह रहे हैं। लेकिन जिन साहब ने मुझे मेल की है, उनका दिल अभी भी पाकिस्तान में है और वो पाकिस्तान में आके पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारे फेलो पाकिस्तानीज ये सुन रहे हैं कि देखें हम कितना सारा टैलेंट से वो अपनी नफरतों की बुनियाद पे, अब देखें मैं उसके रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट पे बिल्कुल भी नहीं जा रहा, क्योंकि मैं उसका कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मगर इंसानी बुनियाद पे देखें हम कितना टैलेंट जो है हम अपने मुल्क से सिर्फ इसलिए भगा देते हैं बिकॉज वी डोंट अग्री टू व्हाट दे बिलीव इन। ठीक है, और फिर ये बात कहीं रुकती नहीं है। अगर आप सारे एक जैसे भी हो जाना, फिर भी मसला होगा कि यार ये ऐसे क्यों है वैसे क्यों। एनीवे, आपके फादर का कंसर्न बिल्कुल सही है। इनफैक्ट कल ही एक 31 साल डॉक्टर जिनकी रवानगी थी यूएस के लिए, अहमदी थे, वो उनको मार दिया गया उन्हीं के घर में, अलॉन्ग विद हिज फादर एंड कपल ऑफ अदर हाउस होल्ड मेम्बर्स। वो ज़ख्मी है। 31 साल का डॉक्टर था, अच्छा खासा उसने कितनी मेहनत की होगी, पढ़ाई की होगी, काम के लिए अमेरिका जा रहा था और बस दूसरे ने ये सोच के मार दिया कि आई डोंट अग्री विद हिम। डिसएग्रीमेंट्स होने चाहिए, कोई मसला नहीं है, लेकिन एक हद तक मतलब ये जान लेने वाली जो बातें हैं, फिर ये देखें सिविलाइज्ड माशरे में ये बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं होता। और अगर हम चाहते हैं कि हम एक सिविलाइज मुल्क बने तो हमें कम से कम इन चीज़ों से इज्तनाब करना पड़ेगा। खैर, अगेन ये लंबी डिबेट है। जहाँ तक आपकी फीलिंग्स की बात है, आई टोटली अंडरस्टैंड। आप पहले आदमी नहीं हो, इस तरह की मुझे बहुत सारे दूसरे लोगों ने भी ईमेल्स पहले भी की हैं कि वो किसी न किसी मजबूरी के तहत उनको पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, किसी कुफर के फतवे, किसी पे ये, किसी पे फलाना ढिमकाना, अल्लाह रहम करे क्या गिरा ऊपर। तो कुछ ना कुछ होता रहता है, लेकिन
देखें, अपना मुल्क ही होता है, आप कुछ भी कर लें, जितनी भी बाहर फैसिलिटीज़ हो, सब कुछ हो, रह दे के वो होता पड़ोस मुल्क। अब देखें, मैं इंग्लैंड में बैठा हूँ, मैं अब लॉकडाउन के दिनों में जब यहाँ था 5.5 महीने, मैं यही फील कर रहा था, मुझे एक बार अजान की आवाज़ नहीं। आई एम नॉट अ वेरी रिलीजियस पर्सन, मगर एक होता है ना, क्योंकि मेरे ऑफिस के साथ ही मस्जिद है गली में, और मेरे घर के अपार्टमेंट में नीचे भी मस्जिद है, तो वो एक हैबिट बनी हुई है। और कहीं से अल्लाह का नाम भी सुनाई दे रहा हूँ ना, तो वो एक होता है कि यार somebody is there to protect me, somebody is out there to take me out of my miseries, take me out of my hardships। एक अच्छी फीलिंग होती है। यहाँ पे पता ही नहीं चलता, कल जुम्मा था, पता ही नहीं था कि जुम्मा है, क्योंकि लॉकडाउन है तो सारे दिन एक जैसे लगते हैं, तो वो वाली फीलिंग ही नहीं है। बज़ान तो एक फैक्टर है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं यार। आपकी बात बिल्कुल सही है, नहीं एक्सेप्ट किया जाता, और वो हमारी हरकतों की वजह से या हमारे रिलीजन की वजह से भी, एक तो वही वैसे ही ग्लोबल एक्सेप्टेंस बड़ी मुश्किल हो गई है मुसलमानों के लिए। सो आई टोटली अंडरस्टैंड। अब रही बात ये कि देखें, इट्स नॉट सेफ, जैसे कि मैंने आपको बताया, कल ही एक वाक़या हुआ है पंजाब में, और ये आए दिन वाक़यात होते रहते हैं। कोई ना कोई आपको देख के ना अपनी जन्नत देख लेगा। तो हमारे दीन में भी ये सिखाया जाता है कि जहाँ हार्डशिप्स हो तो आप हिजरत कर लो वहाँ से, जब तक वो आपके लिए सेफ़ ना हो। तो अगर आपने पाकिस्तान की खिदमत करनी है, आप पाकिस्तान से बाहर रह के भी कर सकते हो। आप जो भी काम कर रहे हो, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हो, अब आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग को लेके ही कोई ना कोई ऐसा वेंचर बना सकते हैं जहाँ पे आप पाकिस्तानियों को हायर कर सकते हैं ऑनलाइन। अब तो ऑनलाइन का दौर है, आप उनको हायर करें, जब आप उनको पैसा भेजेंगे रेमिटेंस की सूरत में, तो मुल्क की खिदमत किसी ना किसी तरह हो ही रही होगी। ज़रूरी नहीं है कि वो अलग बात है जी, कि कहते हैं ना कि जी गन साफ़ करने के लिए गन के अंदर आना पड़ता है, वो भी बात अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन जहाँ पे मामला ज़िंदगी और मौत का हो, तो वहाँ पे बेहतर यही है कि आप एक डिस्टेंस पे रह के भी बड़ी खिदमत कर सकते हैं। ना सिर्फ ये कि आप हैं तो पाकिस्तानी, ठीक है ना, अब वो किस कलर के हैं, किस फ्लेवर के हैं, वो एक अलग डिबेट है, लेकिन है तो पाकिस्तानी। सो यू कैन बी अ गुड एम्बेसडर फॉर पाकिस्तान। आप अपनी कम्युनिटी में फ्रांस में जहाँ भी रह रहे हैं, तो यू कैन बी अ पॉजिटिव एम्बेसडर फॉर द कंट्री। क्योंकि हमारे मुल्क को वैसे लोग जानते नहीं है, जो जानते हैं वो तालिबान की वजह से जानते हैं या दहशतगर्दी की वजह से जानते हैं। तो यू कैन बेसिकली सर्व द कंट्री बाय बीइंग अब्रॉड, और जब तक हालात दुरुस्त नहीं होते तो आप इस तरह करें। और रही बात आप पाकिस्तानी पासपोर्ट की, आप डुअल सिटीजनशिप भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको पाकिस्तानी पासपोर्ट पसंद है, रखें अपने पास। मगर इफ़ यू वांट टू मूव अराउंड यूरोप, अगर आपके काम के सिलसिले में जर्मनी जाना पड़े, नेदरलैंड जाना पड़े, फिर वो आप जो धक्के खाएंगे एम्बेसीज़ के, वो बड़े मसले हैं। तो ज़िंदगी आसान करें, इसमें कोई मसला नहीं है। मतलब ठीक है, अल्लाह मियाँ ने हमें भेजा इस दुनिया में, लेकिन ना नादरा का शनाख्ती कार्ड लगा के भेजा, ना पासपोर्ट लगा के कि बेटा इधर ही रहना सारी ज़िंदगी। आपको जहाँ आसानी हो, आसानी के लिए करें। हाँ, दिल में पाकिस्तान की मोहब्बत बिल्कुल है, वो रखें अपनी जगह। मैं भी तो देखे ना पाकिस्तानियों से मुखातिब हूँ ज़्यादातर। अब तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया में, बांग्लादेश और दूसरे मुल्कों के भी लोग सुनते हैं, मगर सर्विस तो हो रही है ना पाकिस्तान की। तो जहाँ भी रहें करें बिल्कुल। अगर आपके पेरेंट्स समझते हैं कि आपके लिए डेंजरस है, तो वो पेरेंट्स हैं, ज़ाहिर है वो सेफ्टी का आपका ख्याल रखते हैं इसी वजह से। बट इट्स वेरी सैड, और मैं अगेन आई वुड लाइक टू एड्रेस दिस टू फेलो पाकिस्तानीज़ के, देखें इसे नफ़रतों की वजह से हम कितना अच्छा सारा टैलेंट जो है खो देते हैं अपने मुल्क से। अब आप फतवे बार दे रहे हैं, खैर। सो या मैन, कीप अप द गुड वर्क, जहाँ रहें खुश रहें और अपना ख्याल रखें। Thank you. Question number 2. Assalamu alaikum bhai, I'm 19-year-old middle class boy. I have completed my intermediate recently this year and now mechatronics engineering from PAF KIT. Although my classes have not started yet due to the pandemic. The issue is my taya have passed a few days ago. Allah raham kare. So people are coming for condolences. Last night a relative came to us for condolence. I am very shrink person. I don't like to talk with everyone. There are only few whom I talk to. My father always says कि बस अकेले बैठा रहता है, किसी आए गए का ख्याल नहीं होता, क्या कोई आया कोई गया, कोई पास बैठा है उससे बात नहीं करता. So last night I decided to sit with that relative. He started questioning, क्या करते हो मियाँ, क्यों करते हो, मैकेट्रॉनिक्स कैसे ले ली तुमने, तुम्हें कैसे पता, तुम्हारा टेक्निकल माइंड है क्या, घर की चीज़ें ठीक कर लेते हो, वो जो हमारी होती है ना, अच्छा इंजीनियर हो, कंप्यूटर में विंडोज़ डाल दो बेटा मेरी. I replied, I was interested in aeronautics, but for aeronautics I had to go to Risalpur. But I didn't go there. Then I searched for about avionics. Then I came to know this. This is not a wide field, as you know. If your field covers more objects, then it's easy to find a job early. So I searched about mechatronics after studying in my interest. My interest built up in this faculty, and I've decided to do this. It only took 10 minutes for the relative left the house, and you know what he did? When he was leaving, he said to my father, पैसे ज़ाया कर रहे हो इस पे मियाँ,
पढ़ लिख के कुछ भी नहीं करेगा माशाल्लाह। देन माई फादर गेव मी अ ह्यूज लेक्चर कि उन्होंने कोई बात ऐसी देखी होगी इसलिए तो बोला होगा। आई डोंट नो व्हाट टू डू दिस विद दिस शिटी पीपल, प्लीज़ गिव मी योर ओपिनियन ऑन इट। सो बेसिकली 19 साल के लड़के हैं, मैकेट्रॉनिक्स कर रहे हैं और रिश्ते अपनी दुनिया, आपने लिखा आई एम अ वेरी श्रिंक पर्सन, बेसिकली यू वांटेड टू से कि काफ़ी रिजर्व हैं, अपनी दुनिया में रहते हैं और देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। ज़रूरी नहीं हर कोई बातूनी और चपड़ बातें करता रहे। तो वो ताने देते हैं वालिद साहब कि अकेले बैठे रहते हो, गुम पॉकेट। हमारे एक दोस्त था, उसको हम गुम पॉकेट कहते थे मजाक में, तो खैर मैं आपको नहीं कह रहा, मतलब कॉलेज में हम उसको कहते थे, मगर वो पढ़ाई में बड़ा अच्छा था माशाल्लाह। वो एक्चुरियल साइंसेज में पीएचडी कर ली उसने ऑस्ट्रेलिया में और बेहतरीन ज़िंदगी जी रहा है, अल्लाह उसको और कामयाबी दे। शोएब नाम है, बड़ा अच्छा दोस्त है मेरा। तो गुम पॉकेट, तो ये जो चुप होते ना, ये घुनने ये सारे काम कर लेते हैं चुप में, वो आराम से बैठा होता था और सारे की तैयारी पूरी होती थी। सो बेसिकली ताया की वफ़ात हुई, फिर वो रिश्तेदार मिलने आए, तो इन्होंने सोचा कि अब मैं ज़रा खुल के खेलूं और अंकल को समझाया मैकेट्रॉनिक्स। घंटा अंकल को मैकेट्रॉनिक्स पता होगा, उनको टट्टी ट्रॉनिक्स नहीं पता होगा। तो वो ये पास करके चले गए इनके वालिद साहब को कि बेटे पे पैसे ज़ाया कर रहे हो आप, मतलब ना पता, उसको मैकेट्रॉनिक्स की स्पेलिंग नहीं आती होगी। और मुझे इन अब्बुओं पे टेंशन क्या, मुझे अफसोस होता है कि अपनी औलाद पे भरोसा करने के बजाय हर चमन पे भरोसा करेंगे, अपनी औलाद पे नहीं करेंगे। जिसको पाला है, पोसा है, पैदा किया है, बड़ा किया है, उसकी नहीं सुनेंगे, बाकी हर किसी की सुनेंगे। तो आई डोंट नो मैन, ये बहुत बेहुदा हरकत की उन्होंने। अपने फादर को समझाएं और उनको ये ब्रेक डाउन दें। पहले तो आप हर किसी को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, बस बोले हाँ अंकल ठीक है मैं कर रहा हूँ और उसमें काफ़ी जॉब्स हैं और ये वो, मैं इमिग्रेशन कर लूँगा। इनको ना ये वाली बातें ज़्यादा समझ आती हैं कि बहुत स्कोप है इसमें। तो इस पर इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। अपने वाले साहब को समझाएं कि भाई ये दूसरों की बातें ना सुने, ये मैं पढ़ रहा हूँ, ये इसका स्कोप है। उनको ना बाकायदा फ्लो चार्ट बना के दिखाएं पेपर में कि जी ये मैं चीज़ कर रहा हूँ, इसकी ये इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, ये फिर मेरी जॉब ओपनिंग्स हैं। देखें मुझे बोइंग में मिल जाएगी, मुझे एयरबस में मिल जाएगी, डर एविएशन में आपको शौक है ना यहाँ, और इससे फिर मैं स्केल किया है फ्यूचर अपना। अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ जाने के लिए ये करना है। तो अगर आप इन चमचों की बातें सुनेंगे तो मैं इसी स्टेज में फंसा रहूँगा। मैं आपकी औलाद हूँ, मैं उनकी औलाद नहीं हूँ। अगर आप चाहते हैं आपकी औलाद एयरबस में नौकरी करे, बोइंग में अपना जहाज़ बनाए, अबे एयरबस में नौकरी भी क्यों करे, अपना जहाज़ बनाए, ठीक है ना। तो लेट मी डू व्हाट आई एम डूइंग, आई नो माई शिट। ठीक है, आपने पाला पोसा बड़ा किया है, पैदा किया है, सब कुछ किया है, लेकिन हमारी भी अल्लाह ने हमें भी कोई अकल दी है ना। सो ये मेरा फ्लो चार्ट है। असल में ना इनको लिख के समझाएं तो शायद पेरेंट्स थोड़ा समझ जाते हैं। बातें इनको समझ नहीं आती। फ्लो चार्ट पूरा बना के लेके जाएं कि जी ये गोल है, इस गोल में इस वक्त रुकावट आपका एटीट्यूड है, ये रिश्तेदारों का एटीट्यूड है, ये। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा यहाँ इस मकाम पे खड़ा हो तो आपने मुझे इन लोगों से बचाना है, और इन लोगों की बातें आपने नहीं सुननी, आपने उल्टा उनको डिस्करेज करके मुझे इनकरेज करना है, तब मैं इस मंजिल पे पहुंचूंगा। वरना अगर आप चाहते हैं मैं बर्बाद हो जाऊं, पहले ही मैं रिजर्व हूं और मैं डिप्रेशन में कुड़ के और मैं खुदा ना खास्ता सुसाइडल थॉट्स और ये वो बेड़ा गर्क कर लूँ अपनी ज़िंदगी का, तो आप फैसला कर लें। दीज आर द पीपल हु आर रूइनिंग इट फॉर मी, और आप उनके साथ कोलैबोरेट करें। तो आप मेरे बाप हैं या उनके बाप हैं, किसके लिए काम करना है, ऐसे बात करें, इंशाल्लाह ज़रूर उनको समझ आएगी ये बात। क्वेश्चन नंबर 3, इंडिया पाकिस्तान मैरिजेस इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज, ये इसकी हेडिंग है। ग्रीटिंग्स मिस्टर अकरम, होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल। इट इज इन रिगार्ड टू द इंडियन पाकिस्तानी मैरिजेस एंड आई वुड लाइक टू हैव योर टेक ऑन दिस, प्लीज रीड इट टिल द एंड। ठीक है। Currently, I'm an undergraduate studying in a Lahore institution, pursuing a side hustle to bear my educational expenses. Zabardast. It is important to mention here that my father passed away in a plane crash in 2006. Thus, in future, I plan to continue leading my life with my mother, since she does not have anyone else to rely upon. ठीक है, fair enough. In January 2017, I came across an Indian business aspirant and over time we developed feelings for each other. Hey, Veer Zara. Hey. ठीक है, अच्छी बात है, कोई मसला नहीं. We look forward to withstand his family's opposition when we officially disclose our relationship. He says that it will not matter that much since he is self-dependent. Thus, after we are somewhat settled in our careers, we intend to marry each other. Good luck. My mother supports the relationship except for the factor of religion. Okay, this is going a side turn ले लिया.
since he's a Christian. However, I do not think asking him to change his religion would be fair, since that's a personal aspect of each individual's life. So for now, I avoid the subject of religion, but in future it will be a major concern, and I have been transparent to him about it. We both work for an Amazon-based startup, and since it is online, we can operate it from anywhere in the world. Since the majority in India and Pakistan discourages such relationships, we want to move abroad. We plan to move to Dubai, but it does not seem to be a quite secure future, since they do not offer citizenship to anyone other than the UAE citizens. खैर उनके तो by birth ही मिली होती है. So it would be great if you could help us explore all the international options where we could live in the long term. If due to any reason we choose to go for either India or Pakistan, would that be a better choice? I have to take the decision considering how it would affect his, my and my mother's lives. So please provide an unbiased opinion in this regard. We look forward to hearing back from you. Also, you have helped me ace so many crucial aspects of my life. So please continue. Oh, wonderful. Thank you so much for your email. सो बेसिकली सीन ये है कि ये अंडर ग्रेजुएट शी स्टडिंग इन लाहौर, साइड हसल कर रही हैं, अपने अखराजात उठा रही हैं, और मैं हमेशा इसको सपोर्ट करता हूँ. मैंने हमेशा कहा है भाई पढ़ाई के साथ, भाई 16 के हो गए और कमाना नहीं शुरू किया, गलत बात है. कल एक मुझे 14 साल के बच्चे का मैसेज आया हुआ था, बेटा अगर आप देख रहे हो तो मुझे दोबारा मैसेज करना. वो मैसेज मुझसे आगे पीछे हो गया, असल में इंस्टाग्राम पे इतने सारे होते हैं. वो 14 साल का बच्चा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बेच रहा है ऑनलाइन. 14 साल का बच्चा. अबे 14 में हम क्या कर रहे थे, समझ जाओ क्या कर रहे थे, समझ रहे हो ना. ये सीन है जिंदगी में. सो आई एम प्राउड ऑफ यू. इनके फादर का प्लेन क्रैश में इंतकाल हो गया 2006 में, और अब ज़ाहिर तो वो ये कह रही है कि मैंने फ्यूचर में अपनी मदर के साथ ही रहने, यानी शादी के बाद भी, क्योंकि मदर का और कोई है नहीं, अज्यूमिंग शी इज़ द ओनली चाइल्ड. सो शी मेट समवन हु इज़ एन इंडियन, फीलिंग्स डेवलप हो गई और प्यार हो गया. कोई बात नहीं, शादी करने का इरादा है. अब मसला ये है कि वो क्रिश्चियन है, ये मुस्लिम है. अभी कह रही है कि मैंने क्योंकि रिलीजन जो है अकॉर्डिंग टू हर एक पर्सनल एस्पेक्ट होता है, और उस पर बात नहीं की, मगर इन द फ्यूचर ये बात आएगी, जो कि बिल्कुल सही है. ठीक है. तो अब ये कह रहे हैं कि भाई इस तरह हम इंडिया या पाकिस्तान में रहें या कहीं बाहर रहें. अगर बाहर रहें तो दुबई कैसा ऑप्शन है, हमें समझ नहीं आ रहा वगैरह वगैरह. तो ये बेसिकली इनकी कहानी है. सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन पाकिस्तानी मैरिजेस ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये वीर ज़ारा मेरे आसपास भी बहुत हुआ है, बहुत लोगों में हुआ है. भाई लोग रुल जाते हैं इन द सेंस वीज़े नहीं मिलते ना, आप वहाँ जा सकेंगी ना वो यहाँ आ सकेंगे, तो आपको रहना तीसरे मुल्क में. मेरी एक बड़ी अच्छी दोस्त है, वो शी गॉट मैरिड टू अ पाकिस्तानी, इंडियन है, मुंबई की है, और 80s में उनकी शादी हो गई थी. ठीक है. और चूंकि उनको कराची में रहना था हस्बैंड के साथ, सो शी हैड टू कम हेयर. अब चूंकि वीज़े के बड़े मसले थे, और मतलब 80s में तो बहुत ही मसले थे, तो वो फिर उनको नेशनैलिटी चेंज करनी थी. और इंडिया का रूल है डुअल सिटीजनशिप इंडिया में अलाउ नहीं है, तो या तो आप इंडियन हैं या फिर आप कोई और हैं. सो शी हैड टू कन्वर्ट इट टू पाकिस्तानी. तो उनको अब पाकिस्तानी पासपोर्ट मिल गया, अब वो पाकिस्तानी हैं, अब वो इंडियन नहीं है. नाउ शी इज ट्रीटेड लाइक अ पाकिस्तानी, और फिर उनकी डिवोर्स हो गई. मतलब इंडिया भी गया हाथ से, जिस मकसद के लिए छोड़ा वो भी गया. अब पाकिस्तानी पासपोर्ट है, दुनिया में हर जगह जाना मुसीबत हो जाती है. इंडियन पासपोर्ट होता तो इंडियन पासपोर्ट पे मुंह उठा के आप सिंगापुर चले जाएं, हांगकांग चले जाएं, कोई नहीं पूछता. ऑन अराइवल है. पाकिस्तान का आप सोच नहीं सकते. पाकिस्तान में आपको ऑन अराइवल क्या मिलता है, अफ्रीकन कंट्रीज मिलते हैं, मलावी पता नहीं कौन से, बड़ी छोटी सी लिस्ट है. सो शी लॉस्ट दैट, और फिर जिस मकसद के लिए क्या वो भी गया. एक तो ये मसला होता है. दूसरा, आना जाना, जैसे मैंने आपको बताया, वीज़ा आपको नहीं मिलेगा वहाँ जाने के लिए, बड़ा मुश्किल है. फिर वहाँ मिल जाएगा तो फिर यहाँ आने में 10,000 सवाल आते हैं, एंड वाइस वर्सा, दोनों तरफ. तो बेस्ट ऑप्शन लोगों के लिए रहता है कि वो दुबई मूव हो जाते हैं. दुबई बेसिकली दुबई इज़ लाइक अगर इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई नहीं हुई होती, दैट्स दुबई बेसिकली. देखिए, इंडियन और पाकिस्तानी पूरी दुनिया में साथ रह सकते हैं, और रहते हैं. नहीं रह सकते तो अपने मुल्क में नहीं रह सकते. उसकी एक वजह यह है कि जब आप किसी तीसरे का डंडा होता है ना, यू हैव अ लॉट टू लूज. दुबई में जो भी रह रहा है वो घर बार छोड़ के कमाने आया है. अब वो कहता है यार मैं अपनी बीवी, बच्चे, दोस्त, यार, मोहल्ले, खाने पीने, भेलपूरी सब छोड़ के मैं यहाँ आया हूँ, तो मैं लड़ने नहीं आया पाकिस्तानियों से. छोड़ यार, मैंने खाली वली काम करना अपना. यही सोच पाकिस्तानी की भी थी. मैं व्हेन वी वर ग्रोइंग अप इन पाकिस्तान, हमारे इमोशंस डिफरेंट होते थे इंडिया के खिलाफ. ठीक है ना, क्योंकि दैट्स व्हाट वी वर टॉट. जब वहाँ रहने लगे, मतलब ये तो एक जैसे ही है. फिर फ्लैट भी शेयर किया, रूम भी शेयर किया. मैंने तो कभी नहीं सोचा किसी का सर फाड़ दूं, क्योंकि यार मैं भी कमाने आया था, वो भी कमाने. सर पे मारता, मुरक्काबाद पुलिस स्टेशन में उठा के ले जाती, दुबई, दोनों को
ब्लैक लिस्ट करती, डिपोर्ट करती, पड़े रहते कराची में, क्या करते वो, अगला केरला में पड़ा रहता, क्या करता। सो जब आपके पास पैसे का आ जाए ना एक, क्योंकि यहाँ पे वही लोग लड़ रहे हैं जो फारिग हैं, रैलियों पे वही लोग जा रहे हैं जो फारिग हैं, जो जिसके पास काम है वो काम पे बैठा है। समझ रहे हैं मेरी बात। तो इंडियन पाकिस्तानी पूरी दुनिया में साथ रहते हैं, नहीं रहते तो अपने मुल्क में। सो जो इंडियन पाकिस्तानी कपल, और फिर चूंकि दुबई में साथ रहते हैं, साथ काम करते हैं, तो प्यार भी हो जाता है, तो शादियां भी हो जाती हैं। तो फिर वो दुबई ही रहने को प्रेफर करते हैं, बिकॉज वहाँ पे आपको हर वो फैसिलिटी मिलती है जो कि हम क्रेव करते हैं इंडिया पाकिस्तान में, फ्रीडम ऑफ मूविंग अबाउट, कोई तंग नहीं करता, और इट्स लाइक अ गुड मिक्सचर ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट। मतलब आपको ईस्टर्न वैल्यू मिलेंगी, मतलब जुमेरा रोड पे कोई ऐसा स्पॉट नहीं है जहाँ पे आप खड़े हो और आपको मस्जिद ना नजर आए। पूरे जुमेरा रोड पे इतनी सारी मस्जिद है, मगर उतने क्लब्स भी हैं वहाँ पे, ठीक है ना। वो उनको तंग करते हैं ना वो उनको, जिसने वहाँ जाना है वहाँ जाए, जिसने वहाँ जाना है वहाँ जाए, कोई तंग नहीं करता किसी को, ठीक है। आपको सारी फैसिलिटीज इन द सेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और सारी आपको वेस्टर्न लेवल क्वालिटी की मिलती हैं, मगर आपको फिर खाना हर जगह हलाल मिलता है, कोई टेंशन ही नहीं है भाई, कहीं का भी शवरमा खा लो, पक्का हलाल है, 100% हलाल है। एंड द वैल्यूज़ जो कि हमारी ईस्टर्न वैल्यूज़ हैं, तो वो भी आपको मिल जाती है वहाँ पे, तो बेहतरीन जगह। मगर वही वाली बात है, वहाँ सिटीजनशिप नहीं मिलती। वो फिर आपको एक ना एक दिन वो बोलेंगे भाई मियाँ रैप अप करें और वापस जाएं। और अभी तो पाकिस्तानियों के वीज़े वैसे ही बंद कर दिए कोविड की वजह से। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई वो इसराइल का प्रेशर है, क्योंकि इसराइल मान गया, उनको वो इसराइल की दोस्ती हो गई है, तो वो इनको डंडा करवा रहे हैं पाकिस्तान को। अब ये अनफोल्ड होंगी आहिस्ता आहिस्ता, खैर वो एक अलग डिबेट है। मगर ये कि जो इंडियन पाकिस्तानी कपल्स यूएई में रहते हैं, तो 30 साल तक तो वो रहते हैं बड़े आराम से, जब तक नौकरी होती है। जब वो रिटायरमेंट की एज पे आए, और जब दुबई वाले बोले या शेख मरहबा चलें जी, खल्ली वल्ली खुदा हाफिज, फिर आता है मसला। फिर आप ना कराची में ठहर सकते हैं क्योंकि वहाँ से वीज़ा नहीं मिलता इंडियन वाले को, आप मुंबई में नहीं रह सकते, पाकिस्तान वाले को वीज़ा नहीं मिलता, कहाँ जाए, फंस जाते हैं। तो बेहतर है आप यूएई में जो साल इन्वेस्ट करेंगी, वैसे यूएई में जाना आसान है, बहुत आसान है जाना, बड़ा आराम से आप जा सकते हैं। मगर मसला ये है कि कब तक, और आपकी मदर की एज नहीं लिखी, क्योंकि वो भी एक सर्टन एज के बाद भी शायद पेरेंट्स को शायद अलाउ नहीं करते हैं। आई एम नॉट 100% श्योर अबाउट दैट। एनीवे, तो आपने फिर ऐसी जगह जाना है, और वो वाली बात आपकी सही है कि भाई आप यहाँ पाकिस्तान में रहेंगी कम अज़ कम, तो वहाँ तो आपको एक्सेप्टेंस ही नहीं मिलेगी। एक तो इंडियन शौहर ले आई, दूसरा है भी नॉन मुस्लिम, ठीक है ना। अहले किताब से तो शादी की जा सकती है, मगर वो भी हमें तब कबूल है जब लड़का मुस्लिम हो। लड़की कहीं की भी ले आओ खैर है, लड़की अगर कहीं और का लड़का ले आए तो भाई नहीं, ये क्या सीन हो गया। क्योंकि नस्ल मर्द से चलती है, तो हम इस मामले में प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। तो हमें जो कहते हैं ना अहले किताब, हाँ जी यहूदी से भी कर लें कोई मसला नहीं, क्रिश्चियन से भी कर लें, मगर लड़की हो, लड़का मुस्लिम हो, ये होता है लोगों का। जहाँ लड़की फ्लिप करे ये चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो आपको बहुत मुश्किल होगी पाकिस्तान में, आप कहीं भी रहेंगी, जाहिर है। अब इट्स नॉट रॉकेट साइंस, ये चीज़ें छुपती नहीं है, ये पता चल जाती हैं, ये चीज़ें लीक हो जाती हैं। आप कितना छुपा के रखेंगे कि जी इंडियन नहीं है, पाकिस्तानी है, या फिर इनका नाम सोहेल है, ठीक है ना, एंड्रयू नहीं है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। तो बेहतर है आप जो है ना, यू लुक फॉर समवेयर इन यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, क्योंकि वहाँ पे एक तो आपका काम ऑनलाइन है, तो काम कहीं से भी हो जाएगा, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। दूसरा ये कि आपको जो फ्रीडम और लिबर्टी वहाँ मिलेगी ना, जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, तो वो फिर आपका ये चक्कर ही ख़त्म हो जाएगा ना इंडिया पाकिस्तान का। फिर तो कनाडा का पासपोर्ट होगा आपका, फिर कनाडा का पासपोर्ट लेके आप पाकिस्तान में आ जाएं, आप इंडिया चले जाएं, कोई पूछेगा ही नहीं, कोई इतना वो टेंशन नहीं होगी। सो आई वोंट सजेस्ट मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट में आप रहती भी नहीं है, और रहेंगी तो फिर वो टाइम ज़ाया करने वाली बात है। लाइक यू कैन हैव लिमिटेड अमाउंट ऑफ फन, एज इन के लाइक, मगर ये कि वो लॉन्ग टर्म सीन नहीं है। सो आई वुड सजेस्ट, शादी आपने करनी है बिल्कुल करें। रिलीजन वाली बात, हाँ ये इस पर मैं ज़रा करके मैं रैप अप करूँ कि देखें, आप इस पर ज़रूर डिस्कशन करें, बिकॉज आज नहीं तो कल बच्चे तो होंगे, फिर बच्चों का क्या रिलीजन होगा। अगर आप ये सोचेंगे जी हम दो कर लेंगे, एक को मुस्लिम कर लेंगे, एक को क्रिश्चियन कर लेंगे, तो वो एक बड़ा अजीब सा, समझ रहे हैं ना आप, एक फिर you would want that one to be Muslim as well, he would want the other one to be Christian as well। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको किस तरह लेके चलना चाहते हैं। या तो फिर आप जैसे शाहरुख खान ने अपने बच्चे सभी रंग में पाले हुए ना,
तो अगर आप उस तरह रखना चाह रहे हैं, आई मीन इट्स अ पर्सनल चॉइस, मैं कोई एडवाइस इस पे दे नहीं रहा, मगर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस नाउ, क्योंकि फिर कल आपको जो है ना फीलिंग्स तो इवेंचुअली डिमिनिश आहिस्ता आहिस्ता हो जाती है, फिर रियलिटी स्टार्ट्स टू किक इन। अभी प्यार में आप रिलीजन भी नहीं देख रही, ये भी नहीं देख रही, मगर टाइम के साथ साथ जो है ना वो प्यार वाला थोड़ा सा ना वो कम होगा और फिर रियलिटी वाला आएगा, फिर आप यू वुड स्टार्ट टू क्वेश्चन कि जी बच्चों का क्या रिलीजन करना है, एंड फिर वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो जाती है। सो डिस्कस दैट फर्स्ट बिफोर यू गो इनटू एनी सॉर्ट ऑफ यूनियन। आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन। कोई चीज़ रह ना गई हो, अगर रह गई तो यू कैन ईमेल मी अगेन। हाँ जी, ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा लंबा सवाल है, सो प्लीज़ बेयर विद मी, लेकिन ये काफ़ी ट्रैजिक है एंड ज़रूर सुनिएगा। सो प्लीज़ डोंट मेंशन माय नेम। मैं 20 साल का हूँ, बीबीए कर रहा हूँ। मेरी लाइफ फुल ऑफ ट्रेजेडी से भरी हुई है और ये लाइफ मेरी 2014 से स्टार्ट हुई। मेरी नानी की जब डेथ हुई तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था और घर में टैबलेट वगैरह था, मगर एग्ज़ाम्स की वजह से ले लिया गया। अच्छा, मतलब टैबलेट वो आईपैड टाइप का। और मैं अपना टाइम स्पेंड करने बाहर जाता था दोस्तों के पास, मगर वो स्मोकिंग वगैरह करते थे तो मेरी अम्मा हर वक्त मुझे घर में बंद करने लगी। उससे पहले हम लोग फ्लैट्स में रहते थे तो वहाँ तंजीम का मसला होता था। पीपल हु आर आउटसाइड कराची, वो MQM जो एक पार्टी थी, वो उसके लड़के हर फ्लैटों के नीचे बैठे होते थे, तो वो लड़कों को हायर करने की कोशिश करते थे कि जी पार्टी में आके बैठो, और फिर वो ज़ाहिर है फिर वो गलत दिशा में निकल जाते थे बच्चे। सो तंजीम का मतलब ये है, इसीलिए अम्मी नीचे नहीं भेजती थी। और जब 14 साल बाद इसी इलाके में आई तो फिर मुझ पर पाबंदियां लग गईं और मैं घर में रहने लगा। मगर 2014 में मैंने अपने अंदर कुछ डिफरेंट चीज़ें नोटिस करना शुरू कर दी, जिसमें से एक मेजर चीज़ ये थी कि मैं सेम जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो गया। लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की। देन फास्ट फॉरवर्ड टू 2015 में मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए तो मुझे मेरा टैबलेट वापस मिला, लेकिन 2 साल से रखा हुआ था टैब उस वक्त तक ख़राब हो गया था। तो मैं अपना टैबलेट सही करवाने दुकान गया और वापसी रिक्शे से आ रहा था, मगर वापसी में रिक्शे वाला एक कमीना शख्स निकला। वो मुझे मेरे ही इलाके में कुछ अंधेरी गलियों में लेकर घुस गया और रिक्शा बंद करने के बहाने देकर रिक्शा एक अंधेरी गली में रोक दिया और मेरे साथ ज़बरदस्ती पीछे आकर बैठ गया और 10 मिनट तक मेरे प्यूबिक पार्ट को टच करता रहा। मैंने वहाँ से भागने की बहुत ट्राई की, मगर वो भालू का बच्चा था, नहीं भाग पाया। लेकिन किसी न किसी तरह 10 मिनट के बाद मैं वहाँ से भाग पड़ा। जब घर पहुंचा तो मेरे अब्बा ने जब मुझसे पूछा कि इतनी देर क्यों लगाई, तो मैंने उनको और अम्मी को रोते रोते सब बता दिया। और आगे से मेरे अब्बू ने उल्टा मुझे घर से निकाल दिया बग़ैर किसी चीज़ के। मगर फिर भी मैं किसी न किसी तरह अपनी खाला के घर पहुंच गया। उनको कुछ भी नहीं बताया उस बारे में, झूठी कहानी सुना दी उनको रो रो कर। और रोज़ कॉल करता था अब्बू घर वापस आने के लिए, मगर 3 दिन तक मैं खाला के घर रहा और सिर्फ अम्मी से बात होती थी, क्योंकि मैं अपने भाई बहनों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हूँ और मेरे ख़यालात शायद उन लोगों से मिलते नहीं हैं। खैर 3 दिन बाद जब घर आया मैं, तो मुझसे कोई बात नहीं कर रहा था। फिर घर में अचानक फ्यूचर को लेकर बात उठी, तो मैंने अब्बू को बोला कि मुझसे बायो नहीं हो पाएगी। मैंने उनके प्रेशर में ले ली थी। तो उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया और इतना ज़्यादा मारा कि मैं बेहोशी की तरफ जाने लगा। और उसके बाद अब्बू जॉब के सिलसिले में वापस मुल्क से बाहर चले गए और हम दोनों की 2 साल तक आपस में कोई बात नहीं हुई। दैट्स सो सैड यार, मतलब अपने ही बाप से बंदा 2 साल बात ना करे। आई मीन लाइक वाइस वर्सा, ऑब्वियसली आपका कसूर नहीं बेटा, इट्स योर डैड। सो सैड, आई कांट इमेजिन, आई एम अ न्यू फादर। मुझे अभी भी ऊपर से टीनी आवाज़ आ रही है। मेरा एक पार्ट ऑफ माई ब्रेन इज अप कि वो ऊपर क्या कर रहा है। शिट मैन, मैं अपने मैट्रिक और इंटर के दिन मरते मरते गुजार लिए, लेकिन अब मैं यूनिवर्सिटी में हूँ और आज तक उन दिनों को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ। मैंने अपने दोस्तों के अलावा और किसी को भी अपनी पर्सनालिटी के बारे में नहीं बताया है, क्योंकि उन पर आंख बंद करके भरोसा करता हूँ, क्योंकि वो तीनों मेरे 15 साल पुराने दोस्त हैं। और आजकल जब मेरी अम्मी और खाला मेरी शादी की बात करती हैं तो मैं उनसे भागता हूँ और बोलता हूँ कि मुझे शादी नहीं करनी, क्योंकि मैं किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। गुड ऑन यू बेटा, क्योंकि अगला भी इंसान है, उसकी भी ज़िंदगी अजाब बनेगी और मेरी भी। सारे घर बाहर और फ्यूचर का बोझ मेरे ऊपर डाला हुआ है। मेरे घर वालों ने, इवन मेरी अम्मी ने भी, मुझे मीडिया पढ़ना था और एक्टर बनना है, मगर ज़बरदस्ती BBA करवा रहे हैं। ये लोग
ये कहकर कि स्कोप नहीं है, और मैं बोलता हूँ कि मेहनत हर चीज़ में हो तो स्कोप हर चीज़ में निकल आता है। देन मैंने कुछ दिन पहले इन लोगों की वजह से बीबीए एक्सेप्ट कर लिया, मगर फिर भी जब मैं अपने लिए टाइम निकालना चाहता हूँ और तो ये लोग नहीं देने देते। सुबह यूनिवर्सिटी वहाँ से आता हूँ, नहाकर पढ़ने बैठ जाता हूँ, उसके बाद थोड़ा सोकर उठता हूँ और इन लोगों को घर और बाहर का काम शुरू हो जाते हैं। अच्छा, मतलब दूध दही लाओ, ये ले आओ, वो ले आओ, क्या हरकत है यार। उससे रात को फारिग होता हूँ 8 बजे तक, तो थोड़ा सुकून का सांस लेता हूँ, और 9 बजे तक मैं दोस्तों के साथ गेम्स के लिए बैठ जाता हूँ, मतलब ऑनलाइन गेम खेलते हैं। अब इसमें मेरी सारी प्रोडक्टिविटी टाइम निकल जाती है। क्यों भाई और बहनों का कुछ नहीं कहा जाता? अच्छा, उनको कुछ नहीं कहा जाता। अब जब मैंने सोचा और अपने एम्बिशंस के बारे में बताया कि मैं बाहर से एमबीए करूंगा, यूनिवर्सिटी के बाद बाहर से पढ़ना चाहता हूं, तब इन लोगों को मसला हो गया कि तुम यहीं से एमबीए वगैरह करना, जबकि भाई को इंजीनियरिंग के बाद वो बाहर भी भेजेंगे। मतलब भाई के लिए सारे प्लान्स, अच्छा आपको निगलेक्ट कर रहे हैं बेसिकली। पहले ये सारी चीज़ें मुझे डिप्रेस कर रही थी, लेकिन मुझे अल्लाह ने ये अच्छे दोस्त दिए हैं और उन्होंने मुझे इस वक्त संभाला हुआ है। अब ये चीज़ें मुझ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड कर रही हैं, इतना कि अब मैं सुसाइडल हो रहा हूँ। मगर अब मैं अपने दोस्तों के पास भी नहीं जाना चाहता, क्योंकि अब उनकी भी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई और वो डिस्टर्ब ना हो। सो सवाल ये है कि मैं अपनी पर्सनालिटी के बारे में बताऊं या ना बताऊं अपने पेरेंट्स को और अपने भाई और बहनों को, क्योंकि मेरे घर में मेरी अम्मी के अलावा सब लोग गे पर्सनालिटी के ख़िलाफ़ हैं और कहते हैं कि वो लोग नफसियाती होते हैं जो सेम जेंडर से अट्रैक्ट हो जाते हैं। और मुझे इतना पता है कि मुझे कोई दिमागी मसला नहीं है, क्योंकि 2019 में इसी सिलसिले में मैं एक डॉक्टर के पास गया, आ खान हॉस्पिटल में, और कुछ चेकअप्स के बाद डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपको कोई दिमागी मसला नहीं है, क्योंकि आप वाकई ऐसे हैं बाय बर्थ। क्वेश्चन नंबर 2, मैं कैसे राज़ी करूं अपने पेरेंट्स को कि मुझे भी बाहर जाना है एमबीए वगैरह के लिए, क्योंकि मैं पानी का मेंढक बनकर पाकिस्तान में नहीं रहना चाहता, और मैं अगर शादी नहीं कर सकता लेकिन दुनिया तो घूम सकता हूँ और अपने ड्रीम्स को पूरा करना है और दुनिया देखनी है। और मैंने अपने पेरेंट्स को ये तक कहते हुए सुना है कि सब पढ़ने चले जाएंगे और दोनों बेटियों की शादी हो जाएगी, तो इसको यहीं रहना होगा। मतलब रामू काका बनाया हुआ है आपको बेसिकली घर का। ये भी होता है हमारे यहाँ। तो इसको नहीं भेजेंगे बाहर, और मेरे अम्मी अब्बू मेरे मुंह पर कह चुके हैं कि ये तो हमें छोड़ देगा फ्यूचर में, और ये बातें मुझे सीधा दिल में जाकर लगती हैं। सो सैड यार। मुझ पर घर बाहर के काम भी डाल दिए हैं इन लोगों ने, और रिस्ट्रिक्शंस भी लगाना चाहते हैं। मैं ये शॉर्ट्स पहनता हूँ घर में क्योंकि वो कंफर्टेबल हैं सबसे ज़्यादा, तो उस पर अब्बू सुनाते हैं कि तुम काफिर हो गए हो और ये वो। दिन आप सो जाओ दिन में रेस्ट के लिए काम वगैरह करने के बाद, और हर वक्त सोते रहते हो और कुछ काम नहीं है। मतलब मैं जब भी अपने लिए टाइम निकालता हूँ तो तभी मसले खड़े होते हैं, और अब ये चीज़ें हैं हद से बाहर होती जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन, मैंने बहुत मुश्किलों से अपने पैसे जमा करके 1 लाख तक कर लिए हैं। मैं इनको इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ ताकि कुछ इनकम आना शुरू हो सके। मेरे अब्बू सिर्फ मुझे घर में रहने की जगह दे रहे हैं, पढ़ाई का पैसा, खाने को खाना कपड़े दे रहे हैं, क्योंकि मेरा ड्रीम था कि मैं गेमिंग पीसी ख़रीदूँगा। जब उनसे वो मांगा और मना कर दिया, तो मैंने फिर से अपने पैसे जमा करके ख़रीदना और अपने यूट्यूब गोल पर काम किया, और अभी भी कोशिश कर रहा हूँ। अगर हो सके तो इसे अपने पॉडकास्ट में ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। डर 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 You won't believe. Oh, you won't believe while writing this email, I'm crying. That's so sad, man. That is so sad. Oh God, that's so sad. So, like, there's so much that's happening in your life, beta. First of all, um, you said you have tendency to like the people of your own gender. ठीक है, इन द सेंस कि आपने रियलाइज़ किया। अब आप ये कह रहे हो कि मैं अपने पेरेंट्स के बात बताऊं। आपने वो रिक्शे वाली बात बताई थी कि वो जो रिक्शे वाले ने आपके साथ हरकत की जिसमें आपका कसूर भी नहीं था। ये टिपिकल वो हरकत है इंडियन फिल्मों में, आपको याद होगा जब अमरीश पुरी के पास कोई आदमी आके बताता था कि सर इंस्पेक्टर विजय सक्सेना ने हमारा ड्रग्स का ट्रक पकड़ लिया है, तो पहला थप्पड़ ही उसको मारते थे। अबे जो आके बता रहा है, जो तुझे इन्फॉर्म कर रहा है कि जी वहाँ पकड़ा गया, उसको सॉल्व करो, उसी को ही चमाड़ मार दिया। ये टिपिकल हरकत हमारे पेरेंट्स भी करते हैं कि अगर आसपास कुछ किसी और चीज़ पे गुस्सा है, करीब जो बच्चा खड़ा है उसको चमाड़ मार दिया। वो बच्चा बैठा है, मैंने क्या किया यार, बस उसको चमाड़ मार दिया। ऐसा कितनी बार आपने भी अपने घरों में देखा होगा। तो ये टिपिकल वही हरकत है कि रादर दिन आपके फादर आपके साथ खड़े होते
और जाके ढूंढते उस रिक्शे वाले को, उल्टा आपकी पिटाई लगा दी और इतना मारा कि बेहोश होने लगा बेचारा। तो दैट्स सो सैड। तो अगर वो उन्होंने ये वाली चीज़ एक्सेप्ट नहीं की और आपको बेहोशी तक ले गए, तो अगर कल को आपने अपने इन्हीं वालिद साहब को ये बता दिया कि जी मैं गे हूँ, तो वो तो आपकी हड्डियाँ तोड़ देंगे, आपको तो बैल्कनी से खुदा ना खास्ता मार मूर ही ना दे भाई, ठीक है। जो आपको शॉर्ट्स पहनने पे कुफर के फतवे लगा रहे हैं, शॉर्ट्स पहनने पे, वो भी घर के अंदर, मतलब इंसान अपने घर में भी कंफर्टेबल नहीं हो सकता। ये टॉक्सिक घर होते हैं हमारे यहाँ, अल्लाह रहम करे। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, उनका क्या रिएक्शन होगा? सो आई थिंक आपको बेहतर अंदाज़ा है कि ये बात उनके तो कम से कम बताने की नहीं है। माँ से शायद आप शेयर कर सकें, क्योंकि माँ फिर आखिर में माँ होती है, शायद वो अंडरस्टैंड करें इन चीज़ को। बहन भाइयों का मैं कुछ कह नहीं सकता, मगर मुझे लगता है कि पूरा घर ही जो है ना आपको बड़ा टॉक्सिक ट्रीटमेंट है, और आपको रामू काका बनाया हुआ है कि सौदा भी लाना है, पढ़ाई भी उनकी मर्ज़ी की करनी है, मतलब जो आप करना चाह रहे थे, एक्टर बनना चाह रहे थे, वो भी नहीं, उनकी मर्ज़ी का BBA MBA, तो क्या दिल होगा? फिर उनका मर्ज़ी की डिग्री लेके उनकी मर्ज़ी की जॉब करोगे तो उस जॉब में आपका दिल ही नहीं होगा, बिकॉज दैट्स नॉट वॉट यू वॉन्टेड टू डू इन द फर्स्ट प्लेस। एंड दैट्स वाई वी हैव very less productive people in our offices, because most of those people didn't want to be there in the first place. और ये सारा टॉक्सिक शुरू होता है घर वालों से, घर वाले नहीं समझते इन चीज़ों को। भाई मेरा बच्चा रो रहा है, देखें, कह रहा था ना। तो ये बताने का तो मुझे नहीं लगता कि आप, इट वुड बी अ वाइज डिसीजन टू डू दैट। दोस्तों का, I'm happy that you have some kind of support system. It's good to have such friends जो कि आपको ये बात समझ सकें, क्योंकि आजकल जो हालात हैं भाई, दोस्त देर नहीं लगाते कुफर का फतवा लगा के। कितनी बार ऐसा हुआ है, अपनी दोस्त को मार दिया कि जी इसने ब्लास्फेमी की थी, पता चला जी मसला ही कोई और था। तो ऐसे माहौल में और ऐसे हालात में ऐसे दोस्तों का होना जो आपको समझते हैं, इट्स नथिंग लेस देन अ ब्लेसिंग। बहन भाइयों को भी ना बताएं, बिकॉज आई डोंट थिंक देर ऑन द गेम विद यू। हाँ, आपने जो बोला कि जी आप, अच्छा आपने ना बड़े मिक्स चीज़ें बताई, आपको यूट्यूबर भी बनना है, गेमिंग भी करनी है, लेकिन आपको बाहर भी जाना है पढ़ने के लिए। देखिए यूट्यूबर, मैं तो बल्कि लोगों को कहता हूँ कि बिल्कुल आप आएँ इस तरफ, देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, मगर इट्स अ लॉन्ग राइड। रातों रात नहीं बनता बंदा, रातों रात पैसे नहीं आने लगते, बहुत टाइम चाहिए होते हैं, बहुत साल लगाने पड़ते हैं। बहुत कम ऐसी एग्जांपल्स होती हैं जो कुछ महीने में उनकी एक मनी साइकिल स्टार्ट हो जाती है, बट देन, और गेमिंग में तो पहले ही इतने लोग हैं, बट दैट डजंट मीन कि आप ना स्टार्ट करें। कोई भी बच्चा जो सुन रहा है कि जस्ट बिकॉज बहुत सारे लोग ऑलरेडी करें तो अब मैं नहीं कर सकता, ये ना सोचें, ज़रूर करें, ट्राई योर लक, मगर इट्स अ लॉन्ग शॉट। तो मैं सिर्फ इस बेसिस पे कि यूट्यूब से आप पैसे बनाएं, वो पैसा जमा करें, टिकट कटाएं, बाहर एडमिशन लें और गायब हो जाएं, ठीक है ना, दैट वुड बी द राइट थिंग टू डू इन योर केस बेसिकली। क्योंकि आपने जैसे बताया ना, वो आपको रामू काका बनाया हुआ है और सारी ज़िंदगी के लिए ही बनाना चाह रहे हैं। मेरे अपने मतलब दिस समवन आई नो, मतलब कि वालदा ख़ुद नहीं चाह रही कि शादी हो बेटे की, क्योंकि वो आखिरी बेटा रह गया, बाकी सब बेटों की हो गई हैं, ठीक है। और मेरी अपनी फैमिली की बात है, मतलब मैं क्या छुपाऊँ कि वो जान के नहीं करा रहे, क्योंकि आपको समझ आ जाता है कि यार जब दूसरे भाइयों की आराम से हो गई तो इसके लिए क्यों नहीं मिल रही। हर लड़की में नुक्स, हर लड़की में नुक्स। असल में नुक्स ये है कि यार अगर कोई आ गई तो अब मैं घर पे अकेली हूँ, तो बहू मुझे ना निकाल दे, क्योंकि मैं फिर अब बेवा हूँ और फिर मुझे कौन पूछेगा। तो बहुत सारे पेरेंट्स की टॉक्सिसिटी का लेवल ये भी होता है कि बच्चा सड़ता रहे सारी ज़िंदगी, लेकिन हमारे पास कोई बैठा हो, हमें कोई छोड़ के ना चला जाए। तो ये बड़ी गलत सोच है। तो अगर ऐसी ही सोचती तो भाई बच्चे ही ना पैदा करते, ना ढोला होसी ना रोला होसी, सीधी सीधी बात है। तो अब आप पैदा कर लिए तो फिर उनको रहने भी नहीं देना, उनको ज़िंदगी भी नहीं जीने देनी। तो ये तो बहुत ही थर्ड क्लास मेंटालिटी है, मगर ये करते हैं लोग, पेरेंट्स बिल्कुल करते हैं, और आपके केस में भी वो यही चाह रहे हैं। आपने वैसे भी नहीं शादी करनी, क्योंकि ज़ाहिर है you have different aspirations in with regards to your emotions and love। तो और वो आपको कुछ बनने भी नहीं देंगे, वो चाहेंगे कि you only work hard enough to survive, मतलब आप उतने ही ज़िंदा रहें कि बस चलते फिरते रहें, काम करते रहें, उतना ही ज़िंदा रखना है। तो ऐसे तो आप यार अंदर ही अंदर मर जाओगे। तो इट्स अ टॉक्सिक एनवायरनमेंट एंड आई वुड सजेस्ट यू,
इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए कहाँ इन्वेस्ट करके, अब वो मेरे पास तुम हो वाला ड्रामा तो है नहीं कि जी स्टॉक मार्केट में लगाए और 50 करोड़ निकल गए, शहवार पता नहीं क्या नाम था, शलवार जो भी था, वो वाला सीन तो है नहीं। मार्केट्स वैसे ही लो हैं। 1 लाख से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? फिर मैं ये कहूँगा कि भाई आप कोई अपने मोहल्ले में कोई साइड हसल ढूंढो यार। मैंने एक सुना था कि जौहर में, कराची में कुछ लड़कों ने वो किया हुआ है। सो बेसिकली इट्स अ ग्रुप ऑफ गाइस, हर घर के अंदर जाके उन्होंने डाल दिए पैम्फलेट कि जी कुछ भी मंगाना हो हमसे मंगा लें, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिलीज रहती हैं जौहर में, हस्बैंड काम पे, बीवियां घर पे, बच्चे छोड़ के अकेली नहीं उतर सकती, अकेला उतरना सेफ भी नहीं है, और मतलब कितनी बार बंदा उतरे, वो दही मतलब जितनी भी आप ग्रोसरी ले लें, दही धनिया पुदीना चाहिए चाहिए होता है। तो उन बच्चों ने क्या किया, उनके पास बाइक्स हैं, उन्होंने अपने नंबर बांट दिए घरों में, कोई भी काम हो फ़ोन कर दे, बेटा ये ले आओ फलाने आर्केड फ्लैट नंबर 301, बच्चा लेके पहुंच गया, उसने 20 रुपये ऊपर रख लिए, इस तरह करके। तो अगर आप इस तरह करके आप कोई ग्रुप बना लें 5 लड़कों का और उनको राइडर्स हायर करें, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं यार। पाकिस्तान में जितनी देखो जितनी प्रॉब्लम्स है ना, वो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, और हम तो भरे में प्रॉब्लम से, इतनी छोटी छोटी सी चीज़ों की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो इस पर दिमाग लगाओ, कोई ऐसी हासिल निकालो कि पैसिव इनकम एक आती रहे, जनरेट होती रहे, पैसा जमा करो, बाहर एडमिशन लो, बाहर पढ़ो, तुम्हें वो यहाँ पे वो सुकून नहीं मिलेगा सैडली, जिस तरह आपने मुझे बताया है। बाकी तो ज़ाहिर है आप रहते हो, आप ज़्यादा बेहतर जानते हो, बट आई मीन इट ब्रेक्स माई हार्ट टू रीड ईमेल्स लाइक दिस। और मैं अपनी ऑडियंस से भी कहूँगा, एक ईमेल है ऐसी, मेरे पास इस वक्त 4000 से ऊपर ईमेल्स आई हुई हैं, और 90% इस तरह की हैं, और सब पेरेंट्स का किया जा रहा है। पता नहीं यार ये क्या जनरेशन है यार हमारे पेरेंट्स की, समझ से बाहर है यार, अपनी औलादों के दुश्मन है। ये तो क्राइम है सीधा सीधा। बाहर मुल्कों में तो जेल हो जाती है पेरेंट्स को इन चीज़ों पे कि यार आपने मुल्क का फ्यूचर तबाह कर दिया, आपने उसको मार दिया अंदर ही अंदर। सो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, पैसे जमा करें, बाहर एडमिशन लें, अपने ट्रैवल के शौक़ भी पूरे करें, गेमिंग शेमिंग करें, मगर मैंने जैसे बोला कि गेमिंग इज़ अ लॉन्ग शॉट, उसमें पैसे फ़ौरन नहीं बनेंगे, और गेमिंग में पैसा लगता है यार, 8-10 लाख रुपए का सिस्टम बनता है अच्छा वाला, मैंने तो ये सुना है। सो आई होप यू फील बेटर मैन, मतलब डोंट लूज़ होप। अभी जो है ना, वक्त आपके साथ नहीं है, मगर अपना टाइम आएगा, और टाइम सबका आता है। ये ना मेरी बात सुन लें आप, जितने भी सुन रहे हैं, वट एवर प्रॉब्लम्स यू गोइंग थ्रू, लाइफ सबको मौका देती है, 100% यूनिवर्स सबको मौका देती है। चांस पे डांस करना आना चाहिए, एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि यार कब मैंने क्या करना है। दुख हैं, दुख सबके साथ हैं यार। मैं आपको बताऊं, मैं एक दोस्त मुझे एक पार्टी में लेके गया था, मैं बात करूं 2010 की, एक बहुत बड़े बंगले में लाहौर में अंकल थे, और क्या वो बेसमेंट था, और अबे नलके से बियर आ रही थी, मतलब हम तो भाई कोका कोला पीने वाले, नलकों में बियर, और बटलर्स, अबे बो टाई वाले बटलर सर्व कर रहे थे, क्या लेवल ही अलग था पार्टी का। जब वो उस पार्टी से निकले ना रात 3:30 बजे, तो वो अंकल जो है पिए हुए थे, और पीने के बाद लोग ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, वो रो रहा था बच्चों की तरह, रो रहा था। इतना बड़ा आदमी, इतना पैसे यार, उस घर में जितने लंबे पर्दे थे ना, मैंने आज तक ज़िंदगी में इतने लंबे पर्दे नहीं देखे, ज़िंदगी में नहीं देखे, महल था वो रो रहा था, वो रो रहा था। तो जब उससे पूछा ना क्यों, मैंने जब पूछा उनसे कि आप क्यों रो रहे हैं, कह रहे हैं तुम लोग सब मुझे छोड़ के जा रहे हो, मैं अकेला क्या करूँगा यहाँ। अबे वो भी रो रहा है, इतना घर रख के, इतना पैसा, बटलर वटलर सब, वो भी रो रहा है। भाई सबके अपने अपने गम लगे हुए हैं। सो लाइक अगर आप ये सोचते हो ना कि जी ये आ जाएगा तो लाइफ चिल हो जाएगी, अबे भाई हर लेवल पे लोग, गेम सीन ही ऑफ है यार, लाइफ इज़ फुल ऑफ ट्रेजिडीज मैन। सो मैं आपको यही कहूँगा बेटा, डोंट लूज़ होप, और कोई ना कोई रास्ता निकालो, और घर से थोड़ा सा आगे पीछे नहीं करो, और आप जिस हिसाब से आपका अपना पर्सनालिटी है ना, तो वो आपको सूट भी फिर वही एनवायरनमेंट करेगा जहाँ पे एक्सेप्टेंस होगी आपकी चॉइसेस की। तो कोशिश करो, और घर में ना बताना ये चीज़ भाई, तो वो तो खुदा ना खास्ता को नुकसान ना पहुँचाए। कोई और चीज़ रह गई हो तो मुझे बेशक आप दोबारा ईमेल कर देना, आपका नाम मुझे याद हो गया। खैर, सो दिस वाज द एपिसोड ऑफ टुडे, आई होप यू लाइक्ड इट, एंड जो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को दोबारा सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह ये एपिसोड आप मंडे को देख रहे हैं, थर्सडे वाली दोबारा प्रिपेयर हो जाएगी, सो मंडे थर्सडे यू विल गेट न्यू वीडियोज़, एंड
कीप राइटिंग टू मी। अगर आपको कोई भी इसी तरह का कोई ना कोई सवाल हो, ईमेल लिखा हुआ है, मुझसे आप सवाल कर सकते हैं। कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मैं इन्वॉल्व कर सकूँ, बट ट्रैफिक बहुत है यार, मतलब आई ट्राई माई रियली बेस्ट, माई लेवल बेस्ट। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा बात होगी। थैंक यू।